Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saleh Badool and the topic we're going to discuss today is exoskeleton of arthropods. Whenever we use the term exo, we know that it is something that would be outside. And whenever we say the term skeleton, it eventually refers to something which would give the mechanical support, which would be hard. And if it is not hard, it must give the mechanical support shape. Generally, there are three kinds of skeleton discussed within biology. These are the endoskeleton, the exoskeleton, and the hydrostatic skeleton. So the hydrostatic skeleton is basically because of the hydrostatic pressure of the water within the compartments of most annelids. The endoskeleton is in us, humans, and the exoskeleton is the outer hard covering or outer skeleton, and we will discuss this in case of arthropods in detail. Exoskeleton is the hard outer covering of arthropods, which is also called as the cuticle. It is the major reason for arthropod success. Basically, arthropods are the most abundant of the invertebrates encompassing the world, and their exoskeleton is one of the major reasons of their success. This exoskeleton is non-living and it is secreted by a single layer of epidermal cells. This is the layer of epidermal cells, and these secrete the exoskeleton or the cuticle. This epidermal layer of epidermal cell, which is basically the epidermis, as we can see, it is beneath the exoskeleton. So it is not in direct contact with the environment. So we say it hypodermis instead of epidermis. The exoskeleton of arthropods is primarily made up of two layers. The first layer is the epicuticle and the other one is the procuticle, which we will discuss later. Epicuticle is the outermost layer and it is comparatively thin. Its composition is basically waxes, lipids and proteins, which we sometimes collectively say as waxy lipoproteins. The lipid and proteins are mostly combined and the outermost layer is of waxes, as we can see in this picture as well. The waxy texture can easily be observed. This epicuticle basically it reduces the water loss and it also acts as a barrier to the microorganism. Water loss, though, of course, समझ सकते हैं because it is made up of waxes. Water को तो ये conserve करेगी ही करेगी, and it also serves as a barrier to most of the outer foreign invaders and organisms. The second layer, that is the procuticle, is present beneath the epicuticle and it is comparatively thick. As it is thick because it is further composed of two layers, that is exocuticle or endocuticle, or we can usually classify the procuticle into two layers because the exocuticle is hard and pigmented while the endocuticle is relatively soft. It is not that hard and it is the more broader part. And the overall composition of the procuticle is that it is made up of chitin bounded with proteins. Well, we know that chitin is not a true protein. Neither it is a true polysaccharide. It is basically the combination of amino acids and sugars. So in this case, the composition is that the chitin with several proteins. Now, the topic, this is the most important topic within our topic. This is the ecdysis or molting. Basically, as we have said that it is the outer covering, hard covering of an animal, exoskeleton. We say it is a hard outer covering of arthropod. So how the arthropod will grow within its premises? Of course, the animal can't grow within the premises of its exoskeleton, so it has to shed its exoskeleton, which is basically what we call as ecdysis or molting. The term ecdysis is derived from a Greek word ekdusis, which means put off. Greek word जो ekdusis है वो उसका मतलब ही ये है put off, जिसका मतलब है उतार देना. तो ये अपनी process को अच्छे से define कर रहा है.
इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक्डाइसिस की ये है कि periodic shedding of the exoskeleton accompanied by the formation of the new cuticle is termed as ecdysis। मतलब कि ओल्ड जो एक्सोस्केलेटन है उसको तो शेड करना है, बट एट द सेम टाइम न्यू एक्सोस्केलेटन को बनना है, एंड इट्स ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। क्योंकि एक ऑर्थ्रोपोड अपने उस एक्सोस्केलेटन या हार्ड कवरिंग के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, नो डाउट कि वो एक्सोस्केलेटन उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, बट एक उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से उसको उसे शेड करना periodically with the period of time वो इसे शेड करता है, और हर स्पीसीज़ के अंदर ये वेरी करता है टाइम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मोल्ट भी वेरी करती है। ओवरऑल एवरेज फ्रीक्वेंसी जो बताई गई है वो दैट इज़ 5 to 50 टाइम्स in the lifespan, and it majorly depends upon the species type and environmental factors. For example, most of the arthropods do not shed their skeleton when they get sexual maturity. For example, grasshoppers and spiders, while some arthropods molt throughout their life. In examples are lobsters and crabs. Ecdysis बेसिकली एक न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ऑफ कोर्स जो न्यूरोएंडोक्राइन हम बोल रहे हैं तो मतलब ये कि इसमें नर्वस और केमिकल दोनों कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ एक्डाइसिस। पहला स्टेज जो एक्डाइसिस का है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इस फेज़ के नाम से जाहिर है कि इसमें एनिमल खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर द प्रॉपर एक्डाइसिस। इस प्रिपरेशन में क्या क्या आता है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्थ्रोपोड बिकम्स इनएक्टिव फॉर सम टाइम एंड टेक सम शेल्टर। अब इनएक्टिव का मतलब ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ कुछ अरसे के लिए बंद कर देता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक्डाइसिस के लिए, फीड करना ख़त्म कर देगा कुछ टाइम के लिए, एंड कोई शेल्टर, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो खुद को महफूज समझता है वहाँ पे जाके रिजाइड कर लेगा। और जो ये हो गया उसके बिहेवियरल चेंजेस। अब इस टॉपिक को याद करने के लिए हम इन चेंजेस को ना 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस या सेलुलर चेंजेस, और थर्ड वन हार्मोनल। तो बिहेवियरल हमने पढ़ लिए। उसके बाद जो सेलुलर चेंजेस थे वो ये हुए कि एपिडर्मल सेल्स जो थे वो साइज़ में इंक्रीज़ कर गए और उनके अंदर माइटोसिस होने लग गई, तो वो नंबर में भी इंक्रीज़ करेंगे। हार्मोनल चेंजेस में ये हुआ कि जो एक्डाइस्टेरॉइड्स हैं दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द PTCH और द प्रोथोरेसिक ग्लैंड। वो तो एक्डाइस्टेरॉइड बेसिकली इनके नाम से जाहिर है कि ये एक्डाइसिस में ही इन्वॉल्व होंगे, इस प्रोसेस के ही हार्मोन्स हैं, और इनके अंदर फर्दर में बहुत सारे हार्मोन्स फॉल करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो डिटैच होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल्स, और इनके दरमियान जैसे कि हम देख सकते हैं एक स्पेस बन जाती है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सबक्यूटिकुलर स्पेस। और ये डिटैचमेंट का जो प्रोसेस था इसको हम कहते हैं एपोलाइसिस। ओवरऑल जो डिटैचमेंट है ओल्ड क्यूटिकल की फ्रॉम द हाइपोडर्मिस, दिस इज टर्म्ड एज एपोलाइसिस। अब जो दरमियान में सबक्यूटिकुलर स्पेस बनी थी वो फिल हो जाती है मोल्टिंग जेल से, और ये मोल्टिंग जेल कौन रिलीज़ करते हैं, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं मोल्टिंग जेल, और वो मोल्टिंग जेल का बेसिकली क्या काम है, पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती है, फिर ये एक्टिवेट होती है तो ये अपना काम स्टार्ट करती है, विच इज़ दैट इट विल डाइजेस्ट द एंडोक्यूटिकल द ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम द एंडोक्यूटिकल। मतलब एंडोक्यूटिकल से स्टार्ट करती है डाइजेस्ट करना, क्योंकि एंडोक्यूटिकल नीचे नीचे वाली लेयर है तो सबसे पहले वही डाइजेस्ट होगी। और मोल्टिंग जेल इट्स रिच इन काइटिनेज एंड प्रोटीएज। तो काइटिनेज नाम से में ज़ाहिर है जो काइटिन को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीएज जो प्रोटीन को। और हमने बोला था प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन में दैट इट इज़ मेनली composed of chitin bounded with proteins, इसका जो मेन कंपोजिशन है। तो ये उनको यानी कि ओल्ड जो हमारे पास क्यूटिकल थी उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो जब हमने एक्डाइसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इट इज़ अ प्रोसेस in which there is shedding of the old exoskeleton accompanied with the formation of the new exoskeleton। तो जब ये पुराना exoskeleton डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है नया भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से तो एट द सेम टाइम हाइपोडर्मल सेल्स स्टार्ट सीक्रेटिंग द न्यू एक्सोस्केलेटन, और जो प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के ओल्ड क्यूटिकल के वो भी न्यूली फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अब एपोलाइसिस तो हो गई है, लेकिन इसके बाद भी जो आर्थ्रोपोड है वो अपने पुराने
ओल्ड यानी कि जो उसका एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर अभी है, बिकॉज वो अभी रप्चर नहीं हुआ। वो डाइजेस्ट तो नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो गया है बट ये रप्चर नहीं हुआ। इस स्टेज में हम एनिमल को कहते हैं फेरेट। क्या कहते हैं हम इस स्टेज में एनिमल को? फेरेट। इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा लाइक डीपली देख सकते हैं इस प्रोसेस को कि ये मोल्टिंग जेल रिलीज़ हुई थी जिसने जो डाइजेस्ट कर रही है ओल्ड क्यूटिकल को स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडोक्यूटिकल, और हाइपोडर्मल सेल हैव स्टार्टेड सिक्रेटिंग द न्यू एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द एपीक्यूटिकल। This, and now moving further, the second phase of the ecdysis, the ecdysial phase, बेसिकली जिसमें ecdysis अब होनी है, रप्चर होना है एक्सोस्केलेटन, इसको हम प्रॉपर ecdysis भी कहते हैं। अब वो जो कवरिंग है एनिमल के ऊपर जिसे हम एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं, उसके रप्चर करने के लिए या उसको रप्चर करने के लिए ज़रूरी है कि उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए। इसके लिए मोस्टली एनिमल क्या करता है कि द एनिमल स्वॉलोज एयर और वाटर, जिसकी वजह से उसके एब्डोमेन में और इसके अंदर यानी कि उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है विच विल इवेंचुअली रेंडर्स द प्रेशर टू द एक्सोस्केलेटन एज वेल। और उस एक्सोस्केलेटन के अंदर हमें क्रैक्स चाहिए जिसकी वजह से वो रप्चर होगा। तो इसके अलावा ये हो गए अपेरेंट चेंजेस। अब जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो क्या है कि लेवल ऑफ ecdysteroids इन hemolymph declines which stimulate the production of ETH, क्योंकि ecdysteroids जो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में रिलीज़ हुए थे PTCH से, अब वो कम होना शुरू हो गए हैं और उनकी इस डिक्लाइन होने की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है प्रोडक्शन किसकी? ETH, दिस इज विच इज़ एक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन। नाम से ही जाहिर है कि ये हार्मोन बेसिकली एक्टाइसिस को ट्रिगर करेगा या इनिशिएट कराएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ओल्ड एक्सोस्केलेटन था वो उसके अंदर प्रेशर भी बिल्ड हो चुका है, हार्मोन्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो वो स्प्लिट करेगा अलॉन्ग द प्री डिटर्मिन्ड लाइन्स। अब जो वो क्रैक्स हैं वो ऐसे लाइक रैंडमली नहीं पड़ते, हर स्पीसीज़ की अपनी प्री डिटर्मिन एक्डाइसल लाइंस होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे डायग्राम में श्रिम्प दिखाया गया, तो श्रिम्प की बेसिकली जो एक्डाइसल लाइंस होती हैं दीज आर बिटवीन द हेड एंड द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, ये कैरापेस and the first abdominal segment somewhere between here. These are the ecdysial lines of the shrimp, and so the old exoskeleton split along the some predetermined lines which we called as ecdysial lines. तो cracks के बाद मतलब splitting start हो गई है, and after the splitting along the ecdysial line the animal crawls out of its ओल्ड क्यूटिकल। ये और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन एज वेल दैट द प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो जब ये एनिमल इसके ये जो अभी एनिमल ने डिस्कार्ड किया है एक्सोस्केलेटन अपना, इसको हम कहते हैं एक्सोविया। और ये एनिमल which has just come out of its old exoskeleton, we call it as instar. The fourth phase is the hardening and darkening phase. इस फेज़ में बेसिकली क्या है कि जो अभी हमने देखा था एनिमेशन के अंदर कि जो न्यू एनिमल अभी अपने ओल्ड क्यूटिकल से बाहर निकला था वो बहुत ही सॉफ्ट और इमेच्योर सा उसके एक्सोस्केलेटन था, इट वाज नॉट द प्रॉपर वन। तो जो फोर्थ फेज है इसके बाद बेसिकली हम कह सकते हैं कि अब एक्सोस्केलेटन प्रॉपरली बन चुका है। इसमें हार्डनिंग यानी कि उसकी दो प्रोसेस के ज़रिए उस न्यूली फॉर्म्ड एक्सोस्केलेटन को एक मैच्योर स्टेज पे लाया जाता है। वो दो प्रोसेसेस हैं कैल्सिफिकेशन और स्क्लेरोटाइजेशन। कैल्सिफिकेशन बेसिकली इम्प्रेगनेशन है कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम के इनसॉल्युबल कंपाउंड्स का विद इन द एक्सोस्केलेटन। ये क्रस्टेशियंस के केस में मोस्टली कैल्सिफिकेशन जो है वो एक्सोक्यूटिकल के अंदर होती है, सॉरी एंडोक्यूटिकल के अंदर होती है, और एक्सोक्यूटिकल के अंदर स्क्लेरोटाइजेशन होती है। बेसिकली प्रोक्यूटिकल में भी डिवीजन हो जाती है क्रस्टेशियंस के केस में इन दो प्रोसेसेस की। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि जो स्क्लेरोटाइजेशन है ये भी हार्डनिंग एंड डार्कनिंग है। इसको हम टैनिंग प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोस्केलेटन की जो है वो डार्कन भी हो जाता है वो, जैसे कि हमने इस एनिमेशन में देखा था कि जो वो एक्सोस्केलेटन
शेड कर रहा है वो कितना डार्क है, और जो वो निकला है जो एनिमल एक्सोस्केलेटन के अंदर से वो बिल्कुल लाइट कलर्ड है, तो वो बिल्कुल इमेच्योर है। अब हमने इस स्टेज पे जब लेके जाना है, यानी कि इस एक्सोस्केलेटन को प्रॉपर मेच्योर करना है, तो वो स्क्लेरोटाइजेशन के ज़रिए होगा, अपने प्रॉपर डार्कन भी होगा और हार्ड भी होगा। तो स्क्लेरोटाइजेशन के अंदर होता है क्या है कि जो क्यूटिकल की प्रोटीन्स हैं वो उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्रॉस लिंक करते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं क्विनोन्स के साथ, और इसकी वजह से प्रोटीन मैट्रिक्स जो है वो सख्त हो जाता है और रेजिस्टेंट भी हो जाता है। स्क्लेरोटाइजेशन के बाद जो न्यू एक्सोस्केलेटन बना है, इसको अब हम कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपरली फॉर्म्ड एक्सोस्केलेटन एंड एनिमल इज रेडी टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल लाइफस्टाइल। एडवांस फीचर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन। ऑर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन, जैसे कि हमने कहा कि ये एक कवरिंग है जो कि और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखती है, एक्सेप्ट दिस दैट द एनिमल कैन ग्रो विद इन इट्स प्रीमिसेस। तो जो और बेनिफिट्स हैं वो ये कि एक तो एक्सोस्केलेटन का जॉइंटेड होता है, और जो जॉइंट्स पे एक्सोक्यूटिकल एब्सेंट होती है, तो एक्सोक्यूटिकल क्योंकि हार्ड होती है, अगर वो जॉइंट्स पे नहीं है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। एट दीज पॉइंट्स फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मतलब कि लोकोमोशन इज़ मोर एफिशिएंट। एक्सोस्केलेटन ने, जैसे कि मोस्टली शेल मोलस्क के उनकी लोकोमोशन को हिंडर करते हैं, इन केस ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इनका एक्सोस्केलेटन बिल्कुल भी इनकी लोकोमोशन को हिंडर नहीं कर रहा। Muscles are also attached with the exoskeleton, which will further give the advantage to the locomotion. And exoskeleton of arthropod also have sensory receptors, which can be in various forms. तो इनके पास फर्दर जो एक्सोस्केलेटन, एक तो हमने कहा था ये नॉन लिविंग है, बट इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो जिनको हम सेंसर कहते हैं। दे कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक ब्रिसल्स, कांटेदार शक्ल में भी हो सकते हैं, एपेक्स या लेंसेज की शक्ल में भी हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज द आउटर हार्ड नॉन लिविंग कवरिंग ऑफ ऑर्थ्रोपोड इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, क्यूटिकल, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और बोथ ए एंड बी। वी नो कि हमने एक्सोस्केलेटन को दो नाम दिए थे, एक तो एक्सोस्केलेटन ऑफ कोर्स एंड द सेकंड वन वाज क्यूटिकल। सो आवर मोस्ट क्लोज ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. Second MCQ is exoskeleton of arthropod is secreted by the single layer of cuticular cells, basement membrane, epidermal cells or none of the above. हमने क्योंकि कहा था कि हम उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, तो हाइपोडर्मल सेल्स बेसिकली बोला था, बट इन ऑप्शंस में से जो हमारे सबसे क्लोज आ रहा है वो एपिडर्मल सेल्स है, क्योंकि हम एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। ये लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने हाइपोडर्मिस ही बोलना है, बट प्रेफरेंस इज के हाइपोडर्मिस बोलें। Epidermal cells. So next, dash are the layers of exoskeleton of arthropods. Number 1 epicutical and exocutical. तो इसके अंदर हमारे पास एंडोक्यूटिकल नहीं है। फिर एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, इसके अंदर ऑफ कोर्स प्रोक्यूटिकल और में एंडो और एक्सो दोनों आ जाएंगी। एंड द थर्ड वन इज एंडो एंड एक्सो एंड फोर्थ वन इज एपी एंड एंडो। तो हमें तो पहले ही अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया, विच इज एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल. The fourth MCQ is epicuticle is composed of epicuticle, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर थी एक्सोस्केलेटन की, वो किससे बनी होती है? वैक्सेस, लिपिड्स, काइटिन और वैक्सीलिपोप्रोटीन्स. वैक्सेस होती हैं, लिपिड्स भी होते हैं, काइटिन नहीं होती एपिक्यूटिकल में, एंड वैक्सीलिपोप्रोटीन्स क्योंकि इसमें हमारे पास सारी ही कंपोजिशन आ रही है, तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन. Next is procuticle is composed of lipids, vexes, chitin or none of the above. Procuticle में हमने पढ़ा था that it is composed of chitin bounded with proteins. तो इसमें हमारा most जो close option है वो जा रहा है chitin. The process of detachment of endocuticle from hypodermis is called ecdysis, apolysis or hydrolysis, none of the above. इसमें हमने पढ़ा था कि जो डिटैचमेंट है एंडोक्यूटिकल का हाइपोडर्मिस से, उसको स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस. और ये प्रोसेस होता है एक्डाइसिस के अंदर. तो ओवरऑल प्रोसेस जो था वो एक्डाइसिस था, उसके अंदर ये स्पेसिफिक प्रोसेस जो है डिटैचमेंट ऑफ एंडोक्यूटिकल फ्रॉम हाइपोडर्मिस, इसे हम कहते हैं एपोलाइसिस. नेक्स्ट इज द मोल्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्थ्रोपोड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स
lifestyle, habitat, environmental factors, species and environmental factors. We have discussed that जो मोल्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो स्पीसीज़ की टाइप पे, जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रास हॉपर्स जब सेक्सुअल मैच्योरिटी को रीच कर जाते हैं तो वो मोल्ट नहीं करते फर्दर, जबकि लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स अपनी पूरी ज़िंदगी मोल्ट करते रहते हैं. तो ये एक तो स्पीसीज़ टाइप पे और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, ये दोनों चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी. The predetermined points of weakness along which the exoskeleton splits are called scleroids, silica plates, ecdysial lines, or all of the above. You know that these are the ecdysial lines. During which phase of ecdysis the old exoskeleton splits? In preparatory phase, in hardening phase, ecdysial phase, or none of the above. जो डिटैचमेंट थी उसे हमने एपोलाइसिस कहा था, वो प्रिपरेटरी फेज के अंदर थी. लेकिन जो स्प्लिटिंग थी वो किस में थी? प्रॉपर एक्टाइसिस, विच इज द एक्टाइसियल फेज. सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Arthropods shed their exoskeleton because they can move within their exoskeleton? No, they can move. They can grow within their exoskeleton? Yes, they can grow. And they can reproduce? No, they can reproduce, breathe, everything. They can do everything within the exoskeleton except their growth. During which phase of ecdysis oxygen requirement is quite high? So this was the also proper ecdysis phase, which was the ecdysial phase. So our correct option would be C, ecdysial phase.